Okay, hello aspirants. Uh, this is a new series. This is basically a new video series that we are starting on our platform at witty.in. This is our platform. Okay, at witty.in. There's a dot here. Okay, so now this video series will be totally dedicated towards prelims 2017. We shall be uploading brief 5 to 10 minute videos every day or every alternate day basically, but we'll be covering all of prelims relevant news in the last few days in these videos. What we will do is we will make sure that we have covered every prelims relevant news out there, and this will be done from January 2017 onwards. So basically from for all the current affairs before January, मतलब दिसंबर 2016 और ये सब 2016 का सारा मटेरियल आपको कहीं और से रेफर करना पड़ेगा. वी विल ट्राई टू पुट अप वीडियोस for that also, but I cannot promise you on that. But okay, from January 1st 2017 onwards we'll cover the entire prelims current affairs. That's a promise. Now also we can assure you that this video series is being developed keeping in mind the entire current affairs portion for prelims, so that you don't have to refer to multiple sources or websites for your prelims current affairs. Okay, and one more thing is that you don't have to worry about making short notes here from the video and all, because with every video we will give you a brief synopsis in a PDF form. Now this PDF will be useful for you for revision purposes and all. So basically you should just focus on the video and download the revision notes and store it for future revision or references. Okay, and fine. And also okay, and there is also one more bonus video at the end of every month. Now it will be a revision video of the entire month along with some extra stuff as well. So do not forget to watch it at the end of the month. And this end of the month revision video, so basically this is the basic plan for you. So let's begin for today. So the first thing that I want to talk about here are two important Supreme Court rulings that have come in the past. The first important Supreme Court recent past में जो आए हैं दो Supreme Court rulings. The first important Supreme Court ruling deals with ordinance making power of the president and the governor. So now एक background के लिए जानने के लिए prelims के लिए important है कि president makes ordinances under Article 123. And the governor will make ordinance under Article 213. तो इसको याद रखने का बहुत आसान तरीका है. अगर आपको एक भी याद हो जाए तो इनके बीच में यूजुअली स्टेट और सेंटर वाले आर्टिकल्स के बीच में 89 का डिफरेंस होता है. सो इससे याद हो जाएगा आपको अगर आपको एक भी याद हो जाए तो. सो now the Supreme Court ruling क्या था? Supreme Court ruling says that the satisfaction these articles talk about satisfaction of the president and the governor. So the satisfaction is which is necessary for the promulgation of the ordinance. So this satisfaction of the president and the satisfaction of the governor is now no more immune from judicial review. इसको judicial review के अंदर ले आए हैं. Judicial review is the जुडिशियल रिव्यू सही में नहीं है. बेसिकली पहले क्या होता था कि ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस लोग बनाते चले जाते थे. सो नाउ सुप्रीम कोर्ट टुक नोट ऑफ इट. एक केस था जिस केस में सुप्रीम कोर्ट टुक नोट ऑफ इट. इट रिलेटेड टू सम ऑर्डिनेंस दैट हैड बीन प्रोमulgated बाय बिहार गवर्नमेंट. ठीक है, इन द पास्ट लॉन्ग बैक. So this is not important. What is important कि सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग क्या था. So the crux of the ruling is now कि अब होगा क्या कि if there are ulterior motives now, if there are ulterior motives involved in promulgation of the ordinance, this ordinance would be now termed as fraud. So now judicial review. So this is what is important in the Supreme Court ruling. Obviously the details and the analysis of this ruling would be important for your mains, but prelims के लिए बस आपको इतना जानना है कि ये ruling थी. ठीक है, चलिए. तो सेकंड इंपॉर्टेंट जो आपको सुप्रीम कोर्ट रूलिंग है ये है दिस रिलेट्स टू RPA, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951. What it deals with elections में जो use of religion in elections by candidates asking for votes. Now कैंडिडेट्स अपने रिलीजन को यूज करते हैं या फिर वोटर्स के रिलीजन को यूज करके वोट्स मांगते थे आज तक. सो नाउ व्हाट दिस सुप्रीम कोर्ट रूलिंग डज इज दैट it says that now use of religion for votes or something like that in election campaigns by candidates, it has become now a corrupt practice.
इसको करप्ट प्रैक्टिस टर्म कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने. सो नाउ दिस कैन बी यूज्ड बाय, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि नाउ दिस कैन बी यूज्ड बाय ईसी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई इसको यूज कर सकता है टू फॉर annulling इलेक्शंस. एनल कर देंगे इलेक्शंस को इसको यूज करके. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये कर सकता है इसको, ठीक है. सो नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग हियर टू नोटेड इज कि यहाँ पे मेन फोकस रहा है इसका रिलीजन पे, बट यहाँ पे सब कुछ इंक्लूडेड है इस रूलिंग में, ठीक है. मेन फोकस इसका रिलीजन पे ही है, रिलीजन को यूज ना करें इस पे फोकस है, बट यहाँ पे इस रूलिंग में सब कुछ की बात की है. रिलीजन की बात की है, कास्ट की बात की है, क्रीड की बात की है, कम्युनिटी की बात की है और लैंग्वेज की भी बात की है. चलिए, so these are the two most important Supreme Court rulings in the recent past. So moving on. So now next thing है ये आपका एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट. नेक्स्ट थिंग एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट क्या होता है, ठीक है. तो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, तो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट समझने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट ट्रांसफर प्राइसिंग इज. तो ट्रांसफर प्राइसिंग मैं पहले आपको समझाता हूँ. ट्रांसफर प्राइसिंग होता क्या. ट्रांसफर प्राइसिंग, सो नाउ व्हाई एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट आर इन न्यूज़ कि इंडिया ने अभी कभी किसी के साथ एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट साइन किया. अब किसके साथ साइन किया है ये सब इंपॉर्टेंट नहीं. एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट क्या होता है ऐसा नहीं, इकोनॉमिक्स के एक कंसेप्ट की तरह दिस इज इंपॉर्टेंट एज एन इकोनॉमिक्स कंसेप्ट. सो व्हाट फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड ट्रांसफर प्राइसिंग. ट्रांसफर प्राइसिंग इज द प्राइस एट विच पेरेंट कंपनी सब्सिडियरी कंपनी को ट्रांसफर करती है किसी कोई गुड को. लेट्स से कि एडिडास जो कंपनी है पेरेंट कंपनी, वो एडिडास इंडिया को लेट्स से ट्रांसफर शू एट $25 एंड एडिडास इंडिया सेल्स दिस शू एट $30. Now this $25 is what is called as transfer pricing. Now what can Adidas do? Let's say कि ये जो $5 का जो प्रॉफिट कमाया Adidas इंडिया ने, इसको टैक्स करती है इंडिया, इसको इंडियन गवर्नमेंट टैक्स करेगी. लेट्स से कि 30% टैक्स कर रही है गवर्नमेंट इस पे, 30% टैक्स करेगी इसको, 30% टैक्स ऑफ $5. तो अब क्या हो गया कि अगर हमें टैक्स को मिनिमाइज करना है तो व्हाट कैन दिस डू. ट्रांसफर प्राइसिंग, ये जो ट्रांसफर प्राइसिंग थी, एडिडास कैन मैक्सिमाइज दिस ट्रांसफर प्राइसिंग टू लेट्स से $28. नाउ ओनली दिस $2 का गैप जो बच रहा है आपका, सिर्फ यही टैक्स हो पाएगा अब. तो नाउ दे हैव टू पे लेस टैक्स इन इंडिया, और बाकी जो ये प्रॉफिट ये जो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा $3 का प्रॉफिट था, ये किसी ने ना लो टैक्स कंट्री में दिखा दिया इन्होंने, फिर नो टैक्स कंट्री में दिखा दिया इन्होंने. तो दिस वाज अ टैक्टिक दैट वाज यूज्ड फॉर टैक्स एविजन बाय मेनी कंपनीज. इट हैज बीन यूज्ड इन द पास्ट इंडिया में भी. तो इसको हैंडल करने के लिए दिस कंसेप्ट हैज बीन ब्रॉट आउट. एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, एपीए, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट कंसेप्ट ब्रिंग आउट किया गया है. तो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट क्या है कि नाउ इट ट्राइज टू ब्रिंग टैक्स. अब क्या होता है कि टैक्स सर्टेनिटी लाने के लिए इसको लगाया जाता है, ठीक है. अब क्या होता है कि व्हेन द कंपनीज ट्राई टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट बाय मैक्सिमाइजिंग द ट्रांसफर प्राइस, सो इसके बाद अब व्हाट विल द टैक्स अथॉरिटीज डू. टैक्स अथॉरिटीज विल ड्रैग देम टू कोर्ट. टैक्स अथॉरिटीज विल टैक्स अथॉरिटीज जो है, दे विल नॉट ड्रैग देम टू कोर्ट, दे विल लेवी कोई रेट्रोस्पेक्टिव वे में या कोई ना कोई क्लॉज निकाल कर दे विल लेवी हाई टैक्सेस, मतलब हाई टैक्सेस लेवी करेंगे या पेनल्टी कुछ लेवी करेंगे कि ये फ्रॉड प्रैक्टिस एंड ऑल दैट, ठीक है. एंड नाउ इसके कारण फिर कोर्ट में चला जाएगा केस ये, एंड इट विल कीप ड्रैगिंग. सो अब इसको अवॉइड करने के लिए व्हाट वी डिड कि वी स्टार्टेड साइनिंग एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट्स. नाउ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में व्हाट इज द पर्पस बेसिकली ऑफ द एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, कि एडवांस में प्राइस सेट हो जाना. एक फॉर्मूला टाइप का निकालते हैं हम लोग, जिससे कि मतलब एक टेक्निक निकाल जा रही है जिससे कि एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट है, जिससे कि ट्रांसफर प्राइसिंग जो है ना वो एक टेंटेटिवली सेट हो जाए किसी भी गुड के लिए. तो नाउ दीज एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट्स आर साइंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. नाउ द एम विल बिकम टू एस्टैब्लिश टैक्स सर्टेनिटी इन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस. ऑल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में आपके टैक्स सर्टेनिटी आ जाए इसके लिए, ठीक है. Now, so this now will be able to overcome the transfer pricing issue. So this is why now this is what advanced pricing agreement is. I hope it is clear to you.
If there are any doubts still, should leave your comments. I'll answer them. Next thing that I would like to cover is Mercosur. Mercosur है क्या? Mercosur is like एक सब रीजनल ट्रेड ब्लॉक है साउथ अमेरिका का, सब रीजनल ब्लॉक है ये साउथ अमेरिका का, ठीक है। तो इसके 5 मेंबर्स थे इनिशियली, ठीक है, मतलब रिसेंटली इट हैड 5 मेंबर्स विच आर अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे, उरुग्वे and Venezuela. What happened recently? Venezuela was suspended in late December 2016 में Venezuela was suspended from Mercosur. So now we know कि what Mercosur is, और Mercosur के आपको members याद रखने हैं. So now एक handy acronym can be like AV PUB. This can be a handy acronym to remember Mercosur members, where V has been suspended, so now it just becomes a pub. एक pub है बस ये. This is just a pub now. एक handy acronym है to remember what the members of Mercosur. So Venezuela suspended. Now you know कि what Mercosur is and so okay. अब Mercosur के headquarter कहाँ है, आपको ये भी जानने, क्योंकि Mercosur न्यूज़ में था तो headquarter पूछ सकते हैं. headquarter पूछने का बहुत शौक है यूपीएससी को. So headquarter of Mercosur is in Uruguay. Uruguay में एक city है. Uruguay is also a member. If you can see, Uruguay में जो कैपिटल है उरुग्वे का मोंटी, और उसके बाद कुछ नहीं, सिंपल सा वीडियो. तो मोंटी वीडियो यहाँ पे इनका कैपिटल, ये इनका हेडक्वार्टर है Mercosur का. ओके, सो आई थिंक ऑन दिस नोट विल एंड. ये तीन चीज़ें हो गई आज के लिए, 4 चीज़ें हो गई. नेक्स्ट डे विल बी कवरिंग अनदर 5 मिनट्स का एक वीडियो बनाएंगे हम, जिसमें और भी कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे. सो आई गेस दैट इज ऑल फॉर टुडे. एंड डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड द सिनॉप्सिस पीडीएफ जरूर डाउनलोड करिएगा हर दिन, एवरीडे बेसिस पे. उसको आप रिविजन नोट्स की तरह यूज कर सकते हैं. एंड इफ यू लाइक दिस इनिशिएटिव, प्लीज स्प्रेड द वर्ड. And if there's something else you want us to address, please shoot us a comment, and we promise to revert back to you in time. Thank you.